हेलो दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 9/11 है, मतलब सितंबर 11। और आपको पता हो सितंबर 11 में क्या हुआ था? जब 2001 में अल कायदा के टेररिस्टों ने न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को धराशायी कर दिया था, जिसमें 3000 लोगों की डेथ हुई। और उसका जो मेन कल्प्रिट था ओसामा बिन लादेन, वो फिर पाकिस्तान में मिला था और फिर उसको अमेरिका ने मारा। इसके बेस पे आज हमारा प्रोग्राम होगा। और दूसरा, आज के दिन ही जो जिन्ना साहब हैं उनकी भी डेथ हुई थी। डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जो 9/11 में अटैक हुआ यूएस पे, उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई इस्लामिस्ट लोगों की। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं कि एक पत्रकार हैं हिलाल सी न्यूर, उनका मैं एक आपको वीडियो सुनाना चाहता हूँ। 2 मिनट की क्लिप है केवल, और ये उन्होंने यूएन में जेनेवा में एक स्पीच दी है, जबकि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, कतर के रिप्रेजेंटेटिव, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव इजराइल के पीछे पड़े थे, इजराइल के अगेंस्ट थे कि आपने दोहा में अटैक क्यों किया और हमास के 5 आतंकवादियों को आपने क्यों मारा। उसका उन्होंने जवाब दिया है। तो चलिए थोड़ा सा ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। Which is a mediator in the conflict. We condemn the attack on residential buildings where members of Hamas political organisation live. This is a flagrant violation of international conventions. Our solidarity is with the state of Qatar in the face of the illegal bombing by Israel. We condemn the Israeli attack, which has targeted the state of Qatar. Israel's state terrorism, which we condemn, spreads to new countries and targets even the mediators. We stand with Qatar. We also strongly condemn Israel's unlawful and heinous bombing in Qatar. Violation of sovereignty and international law. I now give the floor to United Nations Watch. Mr. President, we have heard a lot about international law from the world's worst violators of international law. It's time to challenge the perpetrators. And so we ask Qatar, if you don't want targeted bombings against terrorists in your capital, why do you harbor terrorists in your capital? Terrorists who are still holding hostages, torturing them, and rejecting peace deals. Why did you host Hania, Mashal, and Al-Khaya in luxury hotels from where they planned their terror? Why did you back Hamas's Gaza coup in 2007? Why have you funneled billions since then, fueling their terror machine, empowering their 5 wars against Israel? Why did you blame Israel for October 7th, absolving Hamas of massacring 1,200 Israelis, Americans, and others? Why is your state-owned Al Jazeera serving as the terror group's non-stop propaganda arm? Why do you act as a mediator by day and a terror sponsor by night? Mr. President, the record shows. ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं रात के वक्त में और सुबह के वक्त में आप एक्ट करते हैं एज ए मीडिएटर। में भी बात किया और उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड में ये बोला है कि जहां पे भी आतंकवादी होंगे, हमास के लोग होंगे, वहां पे इजराइल अटैक कर सकता है। जबकि ये इनके बोलने का काम नहीं था। ही इज बेसिकली ए इसको आप ये बोलिए कि इनका एक यूएन वॉच है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है बेसिकली। और ये जेनेवा समिट में बोल रहे थे ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, तो जहां पर कि ये पूरी बातें हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। Qatar is a state sponsor of terror. The Gulf states said so in 2017 when they suspended ties with Qatar. Now, yesterday, Antonio Guterres and French President Macron condemned Israel. But when the U.S. killed bin Laden in Pakistan, the UN chief at the time celebrated that, quote, justice has been done to such a mastermind of international terrorism. France called it a victory for all democracy. अब ये बताइए, बिल्कुल ठीक बोला। जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था तो उस समय चाहे मैक्रो हो और चाहे यूएन चीफ हो, दोनों का कि बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन जब इजराइल ने दोहा में, कतर में जाके 5 आतंकवादियों को मारा हमास के, तो वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? और दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल इनके साथ हूँ। 1200 जो लोग मरे थे इजराइल के बच्चे, उनमें से 150 अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनको किडनैप करके रखा हुआ है। गाजा बर्बाद हो गया। जो वहां पे रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनपे कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद हमास वाले पूरे लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो होस्टेजेस को छोड़ नहीं रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब अब किससे लड़ रहे हैं?
और कब तक लड़ोगे? अब तो ये हो गया है कि इजराइल ने बोल दिया है, ये मैं अपने सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा अभी, कि नेतन्याहू ने बोला कि भैया तुम मत रखो अपने पास। कतर से बोला है तुम ऐसे लोगों को अपने पास क्यों रखते हो, और ये ऐसे लोग जहां भी रहेंगे, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उनको मारेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए कि ये आपके नेवारो साहब आगे क्या बोलते हैं। Democracies. We ask both. How is this different? Now, when Israel captured the Nazi Adolf Eichmann, rescued the hostages at Entebbe, and destroyed Saddam's nuclear reactor, the UN condemned Israel. Each time... Sorry, I have a point of order. Sorry, a delegation of Pakistan. Thank you, Mr. President. While we believe in constructive engagement with the civil society organizations and value their inputs, चलिए छोड़िए, ये सोचिए क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले, तो वही बोलते रहेंगे ना कि जो गलत हुआ है, गलत हुआ, गलत हुआ है। और आज भी भाई साहब ने, क्योंकि ये नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है कतर के जो केस के ऊपर, और ये कतर ने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप मीटिंग बुलाइए जो इजरायली एयर अटैक्स हुए हैं दोहा के ऊपर, उसके ऊपर। अब देखिए मीटिंग कब होती है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, दैट वी हैव टू सी। अब देखिए नेतन्याहू जी ने कल क्या बोला। We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि देखिए इजराइल भी अत्याचार कुछ ज्यादा ही कर रहा है गाजा के लोगों पे, उनके सिटीजन्स। उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि गाजा में रहने वाला हर इंसान टेररिस्ट नहीं है, तो उनको भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिस्ट नहीं है। Although it is very difficult to bifurcate both the things, लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए जो कि इजराइल ने नहीं रखा। तो एक तरीके से, एक तरफ से तो मैं गाजा के लोगों के साथ हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, या जो अब न पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न स्कूल जा रहे हैं, न ठीक से रह पा रहे हैं। वो आगे जाके क्या बनेंगे, क्या इनका फ्यूचर होगा, इसके बारे में पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए। लेकिन साथ साथ में किसी भी कंट्री को हमास, हाउतीस, हजबुल्लाह ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मेंबर्स को अपने यहाँ जगह नहीं देनी चाहिए। अपने देश में रह के टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाले लोगों को अपने देश में जगह नहीं देनी चाहिए। खुद बाहर निकालो। जब उनको पूरा वर्ल्ड बाहर निकालेगा तो वो जाएंगे, वो अपने अपने जो उनके बिल हैं, बिलों में वापस जाएंगे और वहां पे मारे जाए। ऐसे टेररिज्म खत्म हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, अगले 2 साल तक गाजा में और वेस्ट बैंक में बमबारी चलती रहेगी। नो एंडिंग फिनोमिना हो जाएगा, क्योंकि हमास के लीडर्स किसी न किसी अलग अलग कंट्री में बैठे होंगे। आज के दिन में ज्यादातर लोग तो या तो ईरान में है और या आपके कतर में है। तो
एटलीस्ट इन दोनों कंट्रीज को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपने यहाँ जगह ना दें। और हमें पूरे देशवासियों से और पूरे वर्ल्ड से कहता हूं कि एक बार 9/11 को याद कीजिए, और जितने लोग 3000 लोगों की जानें गई थी उसमें, उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं आज के। तो कल अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।